جس کو اللہ پاک چاہے اسے اپنے گھر میں بار بار حج اور عمرہ پر لے کر آئے، اور جس کو چاہے نا زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس کو اپنے گھر کی زیارت نہ کرو۔ آج آپ خوش نصیب ہیں، آج اللہ پاک نے ہمیں 20-22 کروڑ عوام میں سے اللہ پاک نے پورے پاکستان سے ہمیں پسند کیا ہے، اللہ پاک ہم سے راضی ہوا ہے، تب ہم اس گھر میں آئے، اور اس گھر میں بھی آ کر اللہ پاک کو راضی کر کے جانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جیسے ہم وطن سے آئے تھے ویسے ہی ہم وطن واپس چلے جائیں، پھر آنے کا مقصد نہیں ہے، چکا لگانے کا، ٹائم ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب یہاں سے بدلنا نہیں، یہاں سے اپنے آپ کو بدل کے لے کے جانا ہے، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ حجاج کرام یہاں پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ، یہ جنت کے درخت ہیں، ایک ایک دفعہ پر 1-1 لاکھ کا اجر ملے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، بیٹی ماں کے پاس جائے گی تو بیٹا باپ کے پاس آئے گا، ایک ایک نیکی کی خاطر اس وقت کوئی نیکی نہیں دے گا۔ آج ہمارے پاس ٹائم ہے، اس ٹائم میں جتنا ہو سکے اللہ پاک سے رو رو کر مانگ رہے ہیں، اور یہ وقت بار بار نہیں ملتا۔ حجاج کرام حدیث شریف ہے کہ دنیا میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے جس کے نیچے عربی نسل کا گھوڑا 100 سال اس درخت کے سائے میں گھومے، اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ آج ہم کہاں پر ہیں؟ اللہ پاک کے گھر میں، مقدس شہر میں ہیں، یہاں پر ایک دفعہ اللہ بولا یا ایک دفعہ سبحان اللہ بولا، اس کا اجر کتنا مل گیا؟ لاکھ میں۔ اور دن میں 5 نمازیں ادا کریں گے تو 5 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ پوری زندگی دن رات آپ مصلی پہ وقت گزار دیں، کبھی آپ 5 لاکھ نمازیں ادا نہیں کر سکتے، اور یہاں پر پڑھیں گے 5، اور اجر کتنا ملے گا؟ 5 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آج اللہ پاک نے موقع دیا ہے، حجاج کرام 3 ساڑھے 3 4 گھنٹوں کی زیارتیں ہونی ہیں، اور جاگ کر رہنا، سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے پیسے لگا کر آئے، آپ اپنی نیند چھوڑ کر آئے، اور یہ نیند اور پیسے کو ہم قیمتی بنا لیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی گلیے یہی محلے یہ بازار ہماری گواہی دے دینا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں پر جتنا ہو سکے اللہ پاک سے رو رو کر مانگ رہے ہیں۔ حجاج کرام ہم مقدس شہر میں، اس شہر مکہ کے لیے آپ نے پاکستان میں کیا پتا کتنے سال اللہ پاک سے دعائیں کی، کتنے سال اللہ پاک سے رو رو کر گزارشیں کی تھی، یا اللہ کبھی تو کعبہ دکھا دے، یا اللہ کبھی تو مکہ دکھا دے، یا اللہ کبھی تو مدینہ دکھا دے۔ آج اللہ پاک نے ہماری سب دعاؤں کو قبول فرمایا، ہمیں مکہ مکرمہ کے اندر لے گئے۔ حجاج کرام سب سے پہلے جو مقدس شہر کے اندر مقدس زیارت آ رہی ہے، جبل سور ہے، غار سور ہے۔ جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں، اور سور سائیدار کو کہتے ہیں۔ آپ نے پہاڑ تو دیکھے ہوں گے، پوری دنیا کے اندر پہاڑ دیکھے ہوں گے، آج ہم غار سور کیوں کہ دیکھنے جا رہے ہیں؟ غار سور کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر یہ وجہ ہے، غار سور کی یہ وجہ ہے کہ وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 3 دن اور 3 راتیں قیام کیا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مکہ کے اندر اپنی زندگی کے 40 سال گزارے تھے۔ جب 40 سال گزارے، یہ مکہ والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانا کرتے تھے، سچا مانا کرتے تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھنے کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ 40 سال گزر جاتے، 40 سالوں کے بعد پوری دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے پہچانے جاتے۔ 40 سالوں کے بعد اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا، اے میرے پیارے محبوب، اب یہ مکہ والوں کو دین اسلام کی دعوت دو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام کفار مکہ کو صفا کی پہاڑی کے پاس اکٹھا کیا، وہ صفا جو آج ہم عمرہ کرتے ہوئے سب سے پہلے جو پہاڑی کے پاس گئے تھے، یہ نہیں کہتے ماشاءاللہ، سب کہتے نا ماشاءاللہ، جو نہیں گیا نا وہ 300 ریال کا بکرا ذبح کروا دے اور عمرے کی تیاری کر لے، اس کو دم لگ گیا، اس کا عمرہ نہیں۔ اور صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان گزرنا ایک واجب ہے، یہ ادا نہ کرے عمرہ مکمل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام کفار مکہ کو صفا کی پہاڑی کے پاس اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا، اے مکہ والو، آپ نے 40 سالوں کے اندر مجھے کیسا دیکھا ہے، مجھے کیسا پایا؟ سبھی نے کہا آپ کو صادق اور امین دیکھا، آپ جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر میری بات مان لو، اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر کھڑا ہے جو آپ کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیا آپ میری بات کو سچ مانتے ہو؟ سبھی نے ہاں میں جواب دے دیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب یہ کلمہ پڑھایا گیا تو کسی نے نہیں پڑھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کی خاطر جو سب سے پہلے جو پتھر مارا گیا، کسی غیر نے نہیں مارا، سکے چچا نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کے اوپر پتھر مارا اور اس کو کہا، اے محمد، ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا تیرے ہاتھ ٹوٹ گئے،
तू रिसवा हो। अल्लाह पाक अपने जलाल के आगे, अल्लाह पाक ने फौरन कुरान पाक के अंदर सूरह नाज़िल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब मतब, ऐ अबू लहब तेरे हाथ टूट जाए, तू जलील हो जाए, तू रिसवा हो जाए, मोहम्मद हमेशा के लिए आबाद होगा और दीन इस्लाम यहाँ से फैलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद 13 साल मक्का शहर में और गुजारे। 13 सालों में कोई मौका ना जाता, दिन की रोशनी ये रात का अंधेरा, कोई मौका कोई वक्त हाथ से खाली ना जाने देते जिस वक्त कुफार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम पर जुल्म ना करते। वही लोग थे जो सादक और अमीन माना करते थे, वही लोग थे जो अमानत रखने के लिए आया जाया करते थे, वही लोग थे जो लड़ाई झगड़ों के फैसले करवाने के लिए आया जाया करते थे। सादक भी माना करते थे, अमीन भी माना करते थे। जब ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दी गई, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन बन जाते और तरह तरह की तकलीफें देते। और नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 सालों में 3 साल काफिरों ने नजरबंद भी रखा था। एक घर के अंदर एक घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बंद किया हुआ था और 13 साल गुजर जाते। 13 सालों के बाद कुफार मक्का देखते कि सिर्फ 84 लोगों ने दीन इस्लाम कबूल किया, सिर्फ 84 लोगों से उनको खतरा पेश होना शुरू हो गया। ये दीन इस्लाम बढ़ता जा रहा है। अब इसका कोई बंदोबस्त कर देते, इसका कोई इंतजाम करते। कुफार मक्का हरम के अंदर एक जगह दारुल निदवा, उस जगह के ऊपर तमाम के तमाम कबीलों से एक एक सरदार आ गए। तकरीबन 40 कबीले थे, 40 सरदार आए और साजिशें करना शुरू कर दी। कोई बोला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से निकाल दो, दूसरा कहता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का के अंदर कैद कर लो। एक इंसानी रूप के अंदर शैतान बोला नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करो, ना होंगे ना दीन फैलेगा और दीन इस्लाम यहाँ से। जब शहीद करने का कत्ल करने का इरादा करते थे तो हिजरत का हुक्म आ जाता। उधर ये कुफार मक्का साजिशें करके तैयारियां करके रात के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर का घेराव कर लेते। जैसे सुबह होगी वार करेंगे, नाउज़ुबिल्लाह शहीद कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। इधर अल्लाह पाक कुफार मक्का से बेहतर चाल अल्लाह चल रहा था। अल्लाह पाक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आया, ऐ मेरे प्यारे महबूब, अब ये मक्का वालों को आपकी कदर नहीं रही, अब ये मक्का वालों को आपकी कदर नहीं रही, लिहाजा अब मक्का छोड़े और मदीना की तरफ हिजरत करके जाए। उधर ये कुफार मक्का रात के वक्त तैयारी करके खड़े और इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर परवरिश कर रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और कहा, अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, ये मक्का की अमानतें कुछ मेरे पास है, ये रख लो, सुबह होगी तो सुबह अमानतें लुटाकर आप मदीना चले ना। अल्लाह के हुक्म से हमने मक्का छोड़कर मदीना जाना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और जब अपने घर से बाहर निकलते हैं तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ से कुफार मक्का नंगी तलवारें लेकर खड़े। अब क्या करें? फिर अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म आ गया, ऐ मेरे प्यारे महबूब परेशान नहीं होना, अपने पाँव की मिट्टी उठाओ और सूरह यासीन की कुछ आयत पढ़कर कुफार मक्का की तरफ फेंक दो। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव की मिट्टी उठाई और सूरह यासीन की 9वीं आयत पढ़ते हुए काफिरों की तरफ फेंकी तो अल्लाह पाक ने कुफार मक्का के आंखों और कानों पर ऐसे पर्दे डाल दिए कि उनको खबर ही नहीं है कि हमारे दरमियान से कोई जा भी रहा है, कोई आ भी रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से गुजर कर जा रहे हैं, बाजारी तौर पर वो एक दूसरे के साथ बातें कर रहे, एक दूसरे को देख रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान से जा रहे, उनको खबर ही नहीं है, उनको इल्म भी नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान शौकत के साथ सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर दस्तक देते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के दरवाजे पर दस्तक देते तो रात का वक्त होता है, तेरे और मेरे दरवाजे पर दस्तक दे तो अंदर से आवाज आई कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर दस्तक दी थी तो अंदर से आवाज आई थी, या रसूलल्लाह मैं सफर पे जाने के लिए तैयार हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर इतनी रात गुजर गई है, इतनी रात बीत गई है, तू सोया नहीं है। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह जिस दिन से आपने कहा है ना ये मक्का के लोग मेरी जान के दुश्मन है, उस दिन से लेकर आज तक कभी अबू बकर सुकून से नहीं सोया, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनको इंतजार करना पड़ जाए। ये सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर हमें मक्का छोड़कर मदीना जाना है अल्लाह के हुक्म से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जिसने बीवी बच्चों से भी नहीं पूछा, माँ बाप से भी नहीं पूछा, बहन भाइयों से भी नहीं पूछा, रिश्तेदारों से भी नहीं पूछा, हत्ता कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद बूढ़ा भी हैं और नबीना भी हैं, और नबीना और बूढ़े बाप को तो नौजवान बेटे की बहुत
बहुत कीमत होती है, बहुत खास जरूरत होती है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने बाप से भी नहीं पूछा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते। जब 1400 साल पहले आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का शहर छोड़ कर आए थे ना, आज हम ये कारपेट वाले रोड के जरिए हैं, ये बस के जरिए हैं, ये सहूलत के जरिए हैं। 1400 साल पहले यहाँ पर ये कारपेट वाले रोड नहीं थे। यहाँ पर ना खाने को, ना पीने को, ना चरिंद थे, ना परिंद थे, हर तरफ पहाड़ थे। वो पहाड़ जिनके दरमियान इंसान गुजरता तो इंसान को खौफ आता था। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु रात के वक्त जब इन मक्का के पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए जब इस पहाड़ गारे सौर के नीचे पहुंचते हैं, गारे सौर के पास पहुंच रहे हैं, कभी सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़कर आगे निकल जाते, कभी पीछे निकल जाते, कभी दाएं निकल जाते, कभी बाएं निकल जाते। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तो आगे पीछे दाएं बाएं क्यों जा रहा है? सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह, रात का अंधेरा है, जब मेरे जहन में ये ख्याल आता है ना कोई काफिर आगे से छुपकर वार करेगा, अंधेरे में फायदा उठाएगा, तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक फौरन आगे जाते हैं। जब कोई काफिर पीछे जाए, पीछे पहले पहुंच जाते हैं, दाएं से या बाएं से जो वार करे तो पहले सिद्दीक पे करे, बाद में मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुंचाए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इन्हीं मक्का के पहाड़ों के दरमियान से गुजरते हुए जब इस पहाड़ गारे सौर के नीचे पहुंचे ना, पाँव जख्मी थे, पाँव से खून बह रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के भी पाँव से खून बह रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह, मुझसे ये काम बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आपके पाँव से खून बह रहा है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, आप इजाजत दें, आप अपने कंधों पर बिठाकर इस पहाड़ पे लेके जाता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर तो थक जाएगा, तो बूढ़ है तो थक जाएगा। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, या रसूलल्लाह, जिस कंधों पे मोहम्मद सवार होंगे ना वो कंधे थकते, ना वो अबू बकर सिद्दीक थकता। इस पहाड़ की बुलंदी सतह समुंदर से 5413 फीट बुलंदी है, जिस पहाड़ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जिंदगी के 3 दिन और 3 रातें क्या किया। ऐसे बंद उर्दू समझ रहे हैं माशाल्लाह, सबको समझ आ रही है माशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसी साल हज पे बुला ले। ये आमीन स्लो कह रहे हैं कि आपका इनके पास खर्चा खत्म हो गया। इस गेट से पीछे वाले तो ऐसे बैठे जैसे क्या पता कितने दिनों की थके बैठे। और भाई 3 साढ़े 3 घंटे मैंने सोने नहीं देना, जैसे बैठे ना मैंने ऐसे बैठने भी नहीं देना, मैंने जगा कर रखना है, ज़ियारतें करवानी है, याद करवानी है। लोग कहते हैं कि बसों वाले ज़ियारतें ठीक नहीं करवाते। इंशाल्लाह आज आपने खुद ने फैसला करना है कि ज़ियारतें वाकई ठीक की हैं या सोना है तो मुझे भी बताएं, मैं सो जाऊंगा, आपको क्यों तंग कर रहा हूँ। जब ज़ियारत आएगी उस वक्त बताऊंगा कि भाई ज़ियारत आ गई, जागे माशाल्लाह, ज़ियारत आने के बाद फिर लोरी लेके चला देंगे। जब ज़ियारत आए फिर लोरी लेके चलती जाएगी और ज़ियारतें भी होती जाएगी, ठीक है ना। जाग के रहना है, जागेंगे ना इंशाल्लाह। एक दफा सुभान अल्लाह, ये पीछे वाले नहीं कह रहे माशाल्लाह, एक दफा और बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक आपको इसी साल हज पे ले आए। जाजे कराम, आज हम आए हुए हैं गारे सौर के पास। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने आज हमें गारे सौर की ज़ियारत का मौका नसीब फरमाया। उजाजे कराम, ये वो गार है, ये वो पहाड़ है जिस पहाड़ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी। आज हम इस पहाड़ की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस पहाड़ के तवस्सुल हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। और उजाजे कराम, तमाम मेरे हाजी साहबान नीचे उतरेंगे, गारे सौर की ज़ियारत करेंगे, एक ग्रुप की शक्ल में खड़े होंगे इंशाल्लाह। गाड़ी के आगे आ जाएंगे, ग्रुप की शक्ल में खड़े होंगे इंशाल्लाह। गाड़ी की किधर